Hello. Next lecture, transportation in plant, number 8. Now we are relating everything we have discussed till now. Right? We discussed diffusion, diffusion pressure, osmosis, osmotic pressure. Right? And we discussed facilitated diffusion. And now we are comparing the water potential, solute potential, DPD and all the aspects we considered. Okay, so थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा. एनसीईआरटी में इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा बिकॉज दे अज्यूम दैट यू शुड रिलेट एंड दैट्स व्हाई इट्स माय जॉब टू रिलेट. ओके, चलो, सो वी आर रिलेटिंग ऑल द टर्म्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ. ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सेल, ओके, दिस cell is having cell wall, plasma membrane, cytoplasm. Cytoplasm is concentrated. Cytoplasm is concentrated and the cell is exposed to hypotonic media. So when this situation is there, how it leads to different phenomenon and what are the results of different phenomenon occurring in it. Okay, अगर सेल को हम हाइपोटोनिक कंडीशन को एक्सपोज करते हैं तो ये सेल क्या क्या प्रोसेस करता है और इसका रिजल्ट क्या है वो हमको देखना है. So in simple language we said, right now hypotonic media means more free water molecules outside, more free water molecules outside, less water inside, less water molecule inside. So because of that, the water molecules which are present in the media, जिसको हमने बोला था hypotonic media, are now entering in, okay, and they are accumulating within the cell. Okay, so now we are talking about why water is moving from its higher concentration to its lower concentration. Again, the answer is diffusion. Okay, see, in the cell water is less, in the media water is more. So the concentration gradient is already existing and the water is moving from its higher concentration to its lower concentration. That process is called diffusion. Okay, so with the help of, just imagine, with the help of 10 diffusion pressure, 10 water molecules are moving per second. 10 water molecules are moving per second. Here diffusion pressure of 10 water molecule is a 10. ये सब हमने इसके पहले भी यही values लिखे थे. So by 10 diffusion pressure water is entering in. Diffusion pressure is the pressure exerted by water molecule while entering in the cell. Right? While entering in the cell. Diffusion pressure is the pressure exerted by diffusing chemical for the process of diffusion. Diffusion pressure is cause of the diffusion and not the result. Diffusion pressure पानी का इधर ज्यादा है, अंदर कम है. So net movement water का from outside to inside है. This diffusion which is occurring through semi-permeable membrane, that is plasma membrane, is called osmosis. So this is nothing but the process of endoosmosis. Water is moving from its higher concentration to its lower concentration. Right? Okay, then why water is moving in? Because of diffusion pressure of water is more. But just assume, थोड़ा सा सोच के देखो, ये closed structure है, इसके अंदर कितना भी पानी नहीं जा सकता. There are limits. Means what? This water will move till, ये water की movement जब तक होगी जब तक अंदर पूरा पानी से भर न जाएगा. Okay, so when the cell will be full of water, the movement will stop. Okay, so see what we said, that water is moving in because diffusion pressure is existing, and one more thing, there is space within the cell. अगर सेल के अंदर बाहर से आने वाले पानी के लिए जगह नहीं है तो पानी अंदर जाना रुक जाएगा. Understood, right? So these two factors we are considering. Water is diffusing in, the diffusion of water through the semi-permeable membrane is called osmosis. Here endoosmosis occurring. Okay, and endoosmosis diffusion is occurring because of concentration gradient. Okay, इसके अंदर साइटोप्लाज्म का जितना concentration ज्यादा, उतना इसका OP ज्यादा. Concentration is directly proportional to osmotic pressure. तो थोड़ा रिवर्ट करके बोल रही हूँ, इधर पानी ज्यादा है, इधर पानी कम है, तो वाटर की मूवमेंट हो रही है. वेरी करेक्ट. अब थोड़ा अलग से सोचते हैं, अंदर ये जो सॉल्ट मॉलिक्यूल बैठे हैं,
राइट। ये सॉल्ट मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज अट्रैक्शन क्रिएटेड बाय द सेल साइटोप्लाज्म, सो द वाटर इज मूविंग इन। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर तो है ही, वाटर कॉन्सेंट्रेशन अलग है, but one more thing, what is osmotic pressure? Osmotic pressure is the attraction created by the solution for the water molecule. More the concentration of the cytoplasm, more the concentration gradient, more will be the rate of diffusion, and the concentrated cell cytoplasm is attracting water molecule. So osmotic pressure की वजह से अंदर पानी खींचा जा रहा है। ओके, और दूसरी बात, जब सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट होंगे, बाहर से वाटर मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो वो यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप करेंगे जिसको हमने बोला था टर्गर प्रेशर। याद है लास्ट लेक्चर में? टर्गर प्रेशर इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रेजेंट विद इन द सेल। As the water content within the cell increases, the pressure is exerted on the plasma membrane. Plasma membrane will exert pressure on the cell wall. Okay, तो ये जो डिफ्यूजन प्रेशर है जिसकी वजह से पानी अंदर जा रहा है, उसको रेजिस्ट करेगा टर्गर प्रेशर। और एक मैंने रीजन बोला, पानी अंदर क्यों जा रहा है? क्योंकि अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है और पानी को अंदर खींच रहा है, राइट? सो दैट ओपी इज अट्रैक्टिंग वाटर मॉलिक्यूल, टीपी इज रेजिस्टिंग द वाटर मॉलिक्यूल। So net movement of water within the cell is attraction against resistance. Okay, so cell के अंदर की water की movement, the rate of entering in water molecule within the cell. Okay, isn't it? It's suction pressure. Why the cell is sucking in water? Because it has suction pressure. What is suction pressure? Suction pressure is DPD, diffusion pressure deficit. What is diffusion pressure deficit? Concentrated solution को प्योर वाटर से एक्सपोज किया तो डिफ्यूजन प्रेशर में जो अंतर है उसको हमने बोला था डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। The amount by which diffusion pressure of pure water is more than the amount of diffusion pressure of water in cell cytoplasm. इधर से इधर 10 वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं, इधर से इधर अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो याद है लेक्चर नंबर 1 में हमने ये कैलकुलेट किया था। 10 डिफ्यूजन प्रेशर से वाटर मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं, 2 डिफ्यूजन प्रेशर से बाहर आ रहे हैं। सो व्हाट इज डीपीडी? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफरेंस इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड वाटर इन सॉल्यूशन इज 8। ओके, तो डीपीडी थर्स्ट ऑफ द सेल, ये सेल की थर्स्ट दो चीजों पे अवलंबन है। अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उतना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। जितने सॉल्ट ज्यादा वो पानी को अंदर खींचेंगे, राइट? अट्रैक्शन इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टीपी टर्गर प्रेशर विच रेजिस्ट द इनवर्ड फ्लो। ओके, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, which is suction pressure is equal to OP minus TP. OP minus TP. Right? Okay, चलो अब अलग अलग वैल्यूज देखते हैं। अलग अलग कंडीशन में OP TP के वैल्यूज बदलेंगे तो अपने आप DPD का वैल्यू बदलेगा। Okay, so concluding bottom line, before taking the values, we'll conclude DPD suction pressure, सेल के अंदर पानी कितना जाएगा। ओके, इट विल बी डिटरमाइंड बाय ओपी, दैट इज अट्रैक्शन क्रिएटेड बाय द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड द टर्गर प्रेशर, दैट इज रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय वाटर विद इन द सेल। अब ये सिंपल एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ। जस्ट इमेजिन आवर क्लासरूम इज अ सेल। ये हमारा क्लासरूम सेल है, इसका ब्रिक वॉल सेल वॉल है, चारों साइड से मैंने कर्टन लगाए, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and you people are water molecule. क्लास का टाइम हो गया, you started diffusing in. So you water molecule will enter in the classroom. You water molecule when enter in the classroom, the pressure exerted by you is a diffusion pressure, right? Okay, then you entered in. Why you are entered in? Because the teacher in the class is attraction, for that you are entering in. अगर क्लास में टीचर नहीं है
क्योंकि मैंने बोला कल मैं नहीं आ रही हूँ, क्लास है, आओगे आप? नो. सो व्हाई teacher is salt, concentrated solution which is attracting you, right? Okay, so see, in the cell, classroom is the cell, brick wall is the cell wall, plasma membrane is the curtain present, teacher is the concentrated solution, okay, attraction creating, अलग अलग टीचर के लिए अलग अलग अट्रैक्शन होता है, राइट? ओके, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर डिफ्यूजिंग इन. व्हाइल डिफ्यूजिंग इन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय यू इज डिफ्यूजन प्रेशर. ठीक है, देखो ऐसे ही आप रेगुलर क्लास में आते थे. वन फाइन डे व्हाट हैपेंड, यू एंटर्ड इन द क्लास एंड व्हाट यू सी इज दैट Rahul Dravid is sitting in our classroom. One more personality, celebrity I can say, Narendra Modi ji is sitting in our classroom. जैसे ही आपने क्लासरूम में एंट्री की, आपने देखा वहां पे आपका फेवरेट स्टार बैठा है. व्हाट विल बी योर सक्शन प्रेशर? ओके, वो जो सेलिब्रिटी वहां पे बैठा है, दैट इज क्रिएटिंग अट्रैक्शन फॉर यू. तो अब कंपेयर करो द वे यू आर एंटरिंग इन द क्लास फॉर अ टीचर एंड द वे यू आर एंटरिंग इन अ क्लास फॉर द सेलिब्रिटी. उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है. आर यू गेटिंग दैट? ओके, सो सी, you entered in the classroom, you saw the celebrity and that suction pressure sucks you. Okay, you are within the classroom. Okay, 5-10 मिनट में आपने 100-200 मैसेज फॉरवर्ड कर दिए, ये सेलिब्रिटी अवनी मैम के क्लास में बैठी है, कम ऑन. So now the classroom is surrounded by water molecule, that is student. Now it is a hypotonic condition and students are entering from all the direction. सीढ़ियाँ लगा के, खिड़की से, okay, then like रस्सी डाल के, whatever, from n number of places they are entering in. Okay, so देखो, जो आप पहले थे अंदर आए, तो आपको किसी ने रेजिस्ट किया अंदर आने के लिए ना? झट से आप आपके सेलिब्रिटी के सामने खड़े हो, ऑटोग्राफ ले लिया. ओके, 5 मिनट के बाद ये सेल में स्टूडेंट का नंबर बढ़ता गया, रूम में वाटर मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ता गया. ओके, और क्या हो रहा है? चलो चलो बाजू हटो, बाजू हटो. ओके, सो व्हाट हैपनिंग, that the water molecules, students within the classroom, water molecule within the cell are resisting inward flow of the water molecule. So see, celebrity is attracting the water molecule, but water molecule within the cell are resisting. So movement of entry of the water molecule depends on two things: attraction created by the salt, that is celebrity, and the resistance created by the water molecule, turgor pressure within the cell. Got it? Okay, so जो आप पहले आए, झट से सेलिब्रिटी से मिल लिए, ऑटोग्राफ लिए, चल लिए. जो 10 मिनट के बाद आए, वो बाजू हटो, उनको अंदर आने में टाइम लगा, क्योंकि सेल का सक्शन प्रेशर अब कम हो रहा था, क्योंकि सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स एक्यूमुलेट हो रहे थे. 15 मिनट के बाद ये क्लासरूम खचाखच भर गया. ओके, मैक्सिमम लोग वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ गए. अब इतने वाटर मॉलिक्यूल आ गए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो गैप था, वो भी भर गया. ओके, अब आप इतने स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी को मिलना है आपको. आप ऐसे खड़े हो, आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सर्ट कर रहा है वॉल पे. So the pressure exerted by the water molecule on the plasma membrane and the wall is called turgor pressure. ओके, अब जैसे ही ये एक्यूमुलेट हो गया, जैसे ही पानी भर गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अटैच्ड टू सेल वॉल. ओके, सेल फट जाएगा क्या? नो, प्लांट सेल डोंट बर्स्ट ओपन. प्लांट सेल डजंट बर्स्ट ओपन. व्हाई? द सेल वॉल इज द रिजिड स्ट्रक्चर होल्डिंग इट फ्रॉम इनसाइड. आप ठूस के मेरे क्लास में आ गए, भर गए सेलिब्रिटी के मिलने के लिए. आपने कर्टन पे प्रेशर अप्लाई किया, कर्टन ने वॉल पे, तो क्या मेरा क्लासरूम की वॉल टूट गई? नो, द वॉल विल अप्लाई इक्वल प्रेशर. वॉल विल अप्लाई इक्वल प्रेशर ऑन दिस. ओके, वॉल इस पे इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगी, तो दैट प्रेशर विल बी वॉल प्रेशर. टर्गर प्रेशर इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर created within the cell and applied on the wall, and the opposite pressure applied by the wall is called wall pressure. Okay, अब देखो, ठीक से सोचो. जब यहाँ पे क्राउड नहीं था, तो क्या आपको वॉल दबा रही थी? नहीं, आप फ्रीली मूव कर रहे थे. जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का नंबर बढ़ता गया, वाटर मॉलिक्यूल बढ़ते गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉल को चिपक गया.
When it is fully turgid, then the wall started applying pressure. So when turgor pressure is maximum, you can feel wall pressure. अगर अंदर स्टूडेंट कम है तो आपको वॉल प्रेशर फील नहीं होगा. अंदर स्टूडेंट से जगह भर गई तो फिर आप ऐसे खड़े हो, तब आपको लगेगा कि अरे वॉल आपको दबा रही है. अंडरस्टूड, राइट? स्टेप नंबर 1, जब आप अंदर आए, अंदर कोई नहीं था, अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं थे, अंदर का टर्गर प्रेशर 0 था, राइट? ओके. जैसे अंदर वाटर मॉलिक्यूल बढ़ते गए, टर्गर प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और अल्टीमेटली ये सेल में पूरा पानी भर गया. टर्गर प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि अंदर पानी आना बंद हो गया. आर यू गेटिंग दैट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट these 3 situations. Okay, so चलो लेट्स टॉक अबाउट सिचुएशन नंबर 1. Situation number 1. Okay, see. What is situation number 1? DPD is equal to OP minus TP. यही फॉर्मूला हमको यूज करना है. सेल का सक्शन प्रेशर is equal to OP, attraction created by the concentrated solution, minus resistance created by the turgor pressure. So, first condition, what is that? Just imagine कि सेल के अंदर आपका जो भी सेलिब्रिटी था उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 10 था. 10 ऑस्मोटिक प्रेशर से आप अंदर खींचे जा रहे हो. बट यू वर द फर्स्ट वन टू एंटर इन. आप सबसे पहले क्लास में आए तो सेल का टर्गर प्रेशर 0 था. ओके, सेल का टर्गर प्रेशर 0 था. सेल में पानी कम था. ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, याद है? फ्लासिड सेल. ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? फ्लासिड सेल. तो फ्लासिड सेल में टर्गर प्रेशर 0 है, तो वो कंडीशन में डीपीडी की वैल्यू भी क्या हो गई? 10. So can I say in a flaccid cell DPD is equal to OP? Condition number 1. ये सेल के अंदर पानी बहुत कम था, टर्गर प्रेशर 0 था. आप सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल अंदर घुसे, आपके सेलिब्रिटी ने आपको अट्रैक्ट किया, तो आप झट से अंदर आ गए. आपको रेजिस्ट करने के लिए कोई नहीं था, टीपी 0 था. तो योर रेट ऑफ इनवर्ड मूवमेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर attraction created by the celebrity. आपको रेजिस्ट करने के लिए कोई था ही नहीं. Understood condition number 1? Now come to condition number 2. What is condition number 2? सेल के अंदर अब वाटर मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स भर रहे हैं. Okay, so we are using same formula. DPD is equal to OP minus TP. अब देखो, आपको अट्रैक्ट करने वाली सेम सेलिब्रिटी अंदर बैठी है. So same solutes. Celebrity is solute. Okay, same solute यहाँ पे है 10. But now because the water molecules students are accumulating, ये एग्जाम्पल समझ रहे हो ना बेटा? Water molecule within the cell, water molecule within the cell means student in the classroom. Okay, you student are water molecule, classroom is a cell, and teacher and celebrity are the concentrated solution. इस टीचर के लिए आपका OP अट्रैक्शन कम है, सेलिब्रिटी के लिए आपका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है. सेलिब्रिटी के लिए आप जोर से क्लासरूम में घुसते हो. ओके, जब टर्गर प्रेशर आपको रेजिस्ट करने के लिए नहीं है तो आपका इनवर्ड फ्लो, ओके, योर रेट इज डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय द सेलिब्रिटीज अट्रैक्शन. आपको रेजिस्ट कोई नहीं करेगा, राइट? ओके, जैसे ही क्लास में वाटर मॉलिक्यूल टीचर, जैसे ही क्लास में सेल में वाटर मॉलिक्यूल स्टूडेंट एक्यूमुलेट होंगे तो आपके इनवर्ड फ्लो को वो रेजिस्ट करेंगे. So टर्गर प्रेशर बढ़ता जा रहा है. So that is condition number 2. Okay, so see, OP 10, वही सेलिब्रिटी बैठा है. अब TP बढ़ गया, 0 से टर्गर प्रेशर हो गया समझ लो 4. तो DPD आएगा 6, isn't it? So this cell is not a flaccid, but it is partly turgid. इसमें अब टर्गर प्रेशर डेवलप हो रहा है. समझ रहे हो? चलो कंडीशन नंबर 3. व्हाट वी सेड कंडीशन नंबर 3? सेल इज फुल्ली टर्जिड. फुल्ली टर्जिड, इसमें पानी ठूस ठूस के भरा है. ओके, बाहर वाटर मॉलिक्यूल, सेल के बाहर वाटर मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं, बट सेल के अंदर जगह ही नहीं है. सेल इज फुल ऑफ वाटर. सेल के अंदर, क्लासरूम के अंदर इतने स्टूडेंट्स है कि अब एक भी नहीं अंदर आ सकता. ओके, अब देखो,
एक भी नहीं अंदर आ सकता. Does it mean movement रुक गया? No, it is at equilibrium. It means what? If two students go out, readily two will enter in to meet the salinity. So in a fully turgid cell, the movement has not stopped. Movement of water molecule has not stopped, but the number of water molecule going out and number of water molecule coming in will be equal. Got it? Right? Okay. So in a fully turgid cell is completely packed with the water molecule. Water molecule are exerting pressure on plasma membrane exerting pressure on cell wall, and cell is fully turgid. In that situation, the attraction created by salinity, okay, same formula, dPd is equal to OP minus Tp. So in this situation, OP तो 10 है, 10 OP से आप अंदर अट्रैक्ट, वाटर मॉलिक्यूल अंदर अट्रैक्ट हो रहा है, स्टूडेंट अंदर आ रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस भी उतना ही है 10, तो नेट मूवमेंट विल बी 0. So in a fully turgid cell, TPD equal to 0 because OP equals to TP. Are you getting the calculation? Okay, ये सब चीजों पे अलग अलग प्रॉब्लम भी पूछे जाएंगे. Okay, so remember, bottom line, movement of water within the cell is not dependent only on OP. It's not dependent only on TP. It is relative. Attraction OP minus resistance TP will determine the rate of movement of water within the cell. आप सेल के अंदर, क्लासरूम के अंदर जाओगे कि नहीं, आप मतलब वाटर मॉलिक्यूल, सेल मतलब क्लास के अंदर जाएगा कि नहीं, ये दो चीजों पे अवलंबन है. एक, अंदर कौन बैठा है, अंदर टीचर सोल्यूट है क्या कि सेलिब्रिटी है. टीचर है तो जड़ पावलांनी हात जाल, सेलिब्रिटी है तो दौड़ते जाओगे. ओपी विल बी मोर. बट इज इट कि बस ओपी है तो आप चले गए क्लास के अंदर? नो, सेल के अंदर जगह है क्या? सेल के अंदर जगह है, झट से आओगे? नहीं है. कितना भी प्यार रहे आपका सेलिब्रिटी से, कितना भी ओपी रहे, अंदर न जा पाओगे. So inward movement of water within the cell, that is suction pressure, dPd of the cell, is dependent on two things: attraction OP, turgor pressure, resistance TP. Okay, chalo, write down the things. We are solving problems on this area. See now, the problem is written on the board. These are the three cells A, B, C. Their OP-TP are given and you are supposed to find out the direction of movement of water. कौन से डायरेक्शन में वाटर मूव करेगा? A to B, B to C, B to A, A to C, whatever. जो भी डायरेक्शन है वो आपको कैलकुलेट करना है, राइट? वो कैलकुलेट करके बतानी है. So if you note, in all the three cells, I kept value of OP same, OP 10, 10, 10, and I changed it TP. Okay, and you know that only OP or only TP doesn't determine the direction, but it is relation between OP and TP, that is OP minus TP is a dPd. Okay, चलो तो हर सेल का dPd कैलकुलेट करते हैं. OP minus TP, A सेल का dPd है 6. डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, दैट इज सक्शन प्रेशर. ओके, इसका है 4 और इसका आएगा 3. यू नो डीपीडी सक्शन प्रेशर, वाटर विल मूव फ्रॉम लेस डीपीडी, लेस सक्शन प्रेशर टू मोर डीपीडी, मोर सक्शन प्रेशर, राइट? सो व्हाट विल बी द मूवमेंट? किसका सक्शन प्रेशर सबसे ज्यादा है? ए का, देन बी का, देन सी का. सो वाटर विल मूव फ्रॉम लेस सक्शन प्रेशर टू मोर सक्शन प्रेशर, more suction pressure to more suction pressure. It's moving from C to B to A. Got it? Right? ये water का movement रहेगा. But here as I kept OP constant, क्या सिर्फ TP आपको आइडिया दे रहा है? देखो, इसका 7 है, इसका 6 है, इसका 4 है. OP सबका सेम है. So इसके पास टर्गर प्रेशर 4 है, मतलब इसके पास पानी सबसे कम है. इसका टर्गर प्रेशर 6 है, मतलब इसके पास पानी थोड़ा ज्यादा है. इसका टर्गर प्रेशर 7 है, मतलब इसका पानी सबसे ज्यादा है. सो व्हेन द OP आर सेम, व्हेन OP वैल्यूज आर सेम, वाटर इज मूविंग फ्रॉम मोर टर्गर प्रेशर टू लेस टू लीस्ट.
टर्गर प्रेशर इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विद इन द सेल. जिसके पास पानी ज्यादा उसका टर्गर प्रेशर ज्यादा. So water will move from high turgor pressure to low to least. Got it? In this condition, OP is same. Remember, TP determines the direction when OP is same. Okay, chalo, come to next question. See now. This is cell P. This is cell Q. And this is cell R. PQR. Now I am purposefully changing the OP and keeping the TP same. Okay, so TP 4, 4, 4, and now I am changing OP. OP is 5, OP is 8, OP is 4. Right now, again same question, find out the direction. फिर से DPD निकाल लेते हैं, OP minus TP. इसका है 1, इसका है 4 और इसका है 0. DPD suction pressure. The cell will get more water when its suction pressure is more. तो सबसे ज्यादा suction pressure किसका है? Q का. सबसे कम किसका है? 0 R का. और इसका है 1. So see, this cell has 0 suction pressure, 0 thirst, 0 DPD. इसकी थर्स्ट 0 है. क्यों? इसके पास बहुत पानी है, पानी से भरा है. खुद पानी क्या प्यास क्या होगा? वो खुद पानी है. राइट? सो वाटर, प्योर वाटर हैज 0 DPD, 0 थर्स्ट, 0 water potential, 0 suction pressure. Pure water, because it's pure water. It doesn't have attraction for another water. So ये cell जिसका suction pressure 0 है has abundant water in it. Okay, so water will move from R to P and P to Q. अगर आप मुझे बोलेंगे मैडम इधर से इधर नहीं जा सकता था, हाँ जा सकता है. अगर इस प्रकार से सेल बैठे हैं तो, ये लाइन से बैठे हैं तो, लेकिन अगर ये रिलेटिवली पोजीशन अलग होता था तो वाटर विल मूव फ्रॉम 0 सक्शन प्रेशर, जिसके पास पानी सबसे ज्यादा है, जिसकी थर्स्ट 0 है, to 1 suction pressure, 1 DPD, to 4 suction pressure. With reference to DPD, water moves from less DPD to more DPD, less suction pressure to more suction pressure. Okay, this is problem number 2. Now come to problem number 3 is, see now. This is cell X, cell Y, cell Z. Now I am changing value of OP as well as TP. इसमें मैंने OP सेम रखा था, इसमें TP सेम रखा था. Okay, so accordingly we find out the direction. अगर TP सेम है तो जिसके पास OP सबसे ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सेल साइटोप्लाज्म. ओके, किसका सेल साइटोप्लाज्म कॉन्सेंट्रेटेड है? तो ये पानी जोर से खींचेगा, बिकॉज इसका सेल साइटोप्लाज्म कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब इसके पास पानी कम है. इसके पास पानी कम है तो इसकी थर्स्ट, सक्शन प्रेशर, DPD ज्यादा है. बेटा ये चैप्टर की एक खासियत है, साइंटिफिक टर्म में उलझो नहीं. डोंट गेट इंटरमिंगल्ड बिटवीन द डेफिनेशन. DPD, सक्शन प्रेशर, थर्स्ट. The one who has more water has least thirst, least DPD, least suction pressure. Got it? So water will move from less suction pressure to more suction pressure वाला cell. Okay, simple भाषा में. Osmotic pressure is directly proportional to concentration. जिसका osmotic pressure ज्यादा, उसका cytoplasm ज्यादा concentrated solution. अगर solution concentrated है, साइटोप्लाज्म का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसके पास सोल्यूट ज्यादा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम है. सोल्यूट ज्यादा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम है. अंडरस्टूड? राइट? ओके, सो वाटर इज मूविंग फ्रॉम, व्हाट विल से, लेस ओपी टू मोर टू मैक्स ओपी वाला. नाउ आई एम चेंजिंग क्वेश्चन नंबर 3, XYZ. आई एम चेंजिंग बोथ द वैल्यूज. इसका ओपी है 10, TP है 6, इसका OP है 5, TP है 3, इसका OP है 8, TP है 7.
both the values are changed. Are you getting the variation in problem? Again, you are supposed to find out the direction of water. So I am calculating DPD. Its DPD will be 4. Diffusion pressure deficit, suction pressure. Its DPD will be 2 and its DPD will be 1. So water will move from less DPD, less suction pressure to more to max. So isn't it less DPD, less thirst सेल Z की है, इसकी थर्स्ट, इसका सक्शन प्रेशर कम है क्योंकि इसके पास पानी ज्यादा है. तो ज्यादा पानी से कम की तरफ, कम से और कम की तरफ. दिस विल बी मूवमेंट ऑफ द वाटर. समझ रहे हो? इस प्रकार के प्रॉब्लम ये कॉन्सेप्ट पे आ सकते हैं. इट्स मोस्ट टिपिकल एंड इजीएस्ट क्वेश्चन एज फार एज कैलकुलेशंस आर कंसर्न. ओके, चलो राइट डाउन, लिख लो ये, एंड प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यू फॉर दिस लेसन. एमसीक्यू का बुक जो भी है आपके पास, मैं जो डीपीपी दूंगी वो स्टार्ट कर दो सॉल्व करना. Now, I am hoping that you are understanding dPd is equal to OP minus TP nicely. Now, let us proceed and check out what is water potential. See, dPd, diffusion pressure deficit, and water potential are same but magnitude same, sign opposite. अब थोड़ा ठीक से सोचो, ठीक से सोचो. देखो, मैंने आपको बोला था ऑस्मोटिक प्रेशर और सोल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूट पोटेंशियल न्यूमेरिकली सेम है, उसका साइन अलग है. वैसे ही डीपीडी एंड वाटर पोटेंशियल सेम है, साइन अपोजिट है. कैसे? सी, यू नो दिस फॉर्मूला डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी. यू ऑल्सो नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज नेगेटिव वाटर सोल्यूट पोटेंशियल. ऑस्मोटिक प्रेशर अगर +10 है तो सोल्यूट पोटेंशियल -10 होता है, राइट? देन टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर पोटेंशियल. दीज आर ऑल थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड शब्द. ये ओल्ड फॉर्मूला है, उसको थर्मोडायनामिक्स के अनुसार इस प्रकार से फॉर्मुलेट किया है. यू विल स्टडी इट इन केमिस्ट्री इन अ बेटर वे. ओके, सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज सोल्यूट पोटेंशियल, टर्गर प्रेशर इज pressure potential, right? And hence it is same. Okay, देखो OP सायस है, TP प्रेशर पोटेंशियल है, तो ऑब्वियसली सायस माइनस, ओके, अब ये साइन का हम देखते हैं, इट विल बी वाटर पोटेंशियल, isn't it? ओके, सो ये सब उसके निगेटिव वैल्यूज है. इसका अगर मैंने निगेटिव निकाल दिया सबका, तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू साइस प्लस साई पी, isn't it? सेम फॉर्मूला को मैंने थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से निगेटिव साइन में कन्वर्ट किया. ऑस्मोटिक प्रेशर इज सोल्यूट पोटेंशियल. देखो वो चार्ट निकाल के देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर +10 है तो सोल्यूट पोटेंशियल -10 होता है. प्रेशर पोटेंशियल इज टर्गर प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, the pressure exerted by water against the plasma membrane, right? So that will be pressure potential. So OP का वैल्यू psi है, TP का वैल्यू psi P है. So obviously DPD will be water potential. Okay, so water potential is equal to psi S plus psi P. Got it? Okay, इससे और डिटेल हम सीखेंगे, पहले ये थोड़ा अच्छे से समझ लो. We are just substituting. वाटर पोटेंशियल को हमने डीपीडी से सब्स्टिट्यूट किया है. ऑस्मोटिक प्रेशर इज साई एस, जो हमेशा सॉल्यूशन का नेगेटिव ही होता है. टर्गर प्रेशर इज पॉजिटिव, सो इट इज साई पी. सो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी. सो डीपीडी इज वाटर पोटेंशियल, बट डीपीडी पॉजिटिव होता है, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव होती है. So
दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट विच वी आर डिस्कसिंग नाउ। एक तो सबको रिलेट करना है आपको, अभी तक जो आप समझ पा रहे हो, ओके, वो सब एक जगह आएगा। सो दिस 2-3 लेक्चर्स, ये और इसके पहले के 2 आर द ओनली डिफिकल्ट पार्ट। सो होल्ड ऑन, ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन पूरा का पूरा डिफिकल्ट लेसन है, ठीक है। बस ये 2-3 लेक्चर डीपीडी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा समझने में दिक्कत जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, एंड वन मोर थिंग, इट इज डिपेंडेंट ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो, ठीक है। सो हमने यहाँ पे बोला था psi s प्लस psi p, okay, psi w is equal to psi s plus psi p at normal atmospheric pressure. Psi p is equal to 0, so psi w is equal to psi s, राइट। ये हमने कंक्लूड किया था। सेम थिंग अगर इसके बारे में हम अगर बोलेंगे कि फ्लासिड सेल है, उसका अगर TP 0 है, when TP is 0, we know that dPd is equal to OP। तो ये थोड़ा रिलेटिव है, इसे वेरी होता है, अच्छे से समझना है। नहीं समझा तो लेक्चर के बाद मुझे रोक के फिर से समझा लेंगे, लेकिन कोई कंफ्यूजन कैरी नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस इज वन वे आई एक्सप्लेन्ड इट। ये एक प्रकार से मैंने आपको समझाया। चलो अब दूसरे एंगल से सोचते हैं, दैट व्हाई डीपीडी इज वाटर पोटेंशियल। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट सक्शन प्रेशर is water potential, that is potential energy of free water molecules. How is it so? So come back, मैंने सेकंड लेक्चर में आपको डीपीडी पहली बार सिखाया था और हमने लिखा था डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इज इक्वल टू डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर माइनस डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। और यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी लिखा था। तो सॉल्यूशन ए से अगर कंपेयर करते हैं तो ये डीपीडी सॉल्यूशन ए का है। डीपीडी ऑफ सॉल्यूशन ए विल बी डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर माइनस डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन व्हेन प्योर वाटर इज एक्सपोज्ड टू सॉल्यूशन ए। चलो जाओ अपने क्लास वर्क में पीछे, हमने प्योर वाटर का कॉलम किया था, राइट साइड सॉल्यूशन ए लिखा था, और सॉल्यूशन ए का डीपीडी हमने 8 कैलकुलेट किया था। वही प्योर वाटर के लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्यूशन बी लिखा था, और दोनों के डिफ्यूजन प्रेशर का डिफरेंस, प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर माइनस वाटर इन सॉल्यूशन का डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया था, और वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का डीपीडी कैलकुलेट किया था, राइट। ओके, सो व्हाट वी डिड, व्हाट इज डीपीडी? डीपीडी इज comparison of diffusion pressure of pure water with diffusion pressure of water in solution। हम क्या कर रहे हैं? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर, प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर सॉल्यूशन में जो वाटर है उसके डिफ्यूजन प्रेशर से कंपेयर कर रहे हो, राइट। Okay, so this is how we calculated diffusion pressure deficit. Water potential कैसे कैलकुलेट किया हमने? चलो, water potential is equal to potential energy of pure water. Pure water में 100% free water molecules है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन कैलकुलेट की थी। याद है हमने कैसे लिखा था? हाउ वी रोट वाटर पोटेंशियल के टाइम? वी सेड ये बीकर है, बीकर में पूरे के पूरे 100% फ्री वाटर मॉलिक्यूल है, ओके, एंड रोट इट लाइक दिस, व्हेन ऑल 100% वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री, ओके। 100% बोलो या 100 वाटर मॉलिक्यूल, ये बीकर में 100 वाटर मॉलिक्यूल है, पूरे के पूरे फ्री है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्स दैट इज 0 होगी, ऐसे हमने बोला था।
फिर हमने कंपेयर किया सॉल्यूशन ए के साथ। सॉल्यूशन ए इज 100 वाटर मॉलिक्यूल्स, याद है ना ये पूरे बीकर निकाल के, इट्स 100 वाटर मॉलिक्यूल इन विच वी एडेड 10 salts. So because of this free water molecule का नंबर, ओके, तो यहाँ पे प्योर वाटर में 100% फ्री वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल का नंबर 90 हो गया। तो हमने कंपैरिजन कैसे किया? When all water molecules are free, water potential is maximum, that is 0. When free water molecule number reduces from 100 to 90, water potential also reduces from 0 to some negative sign, and we calculate it water potential of solution A. We wrote it -3, which I said is a hypothetical number. Okay, so कैसे कैलकुलेट किया हमने वाटर पोटेंशियल? जब 100 के 100 फ्री थे तो वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम दैट इज 0 था। सो 100 से जब कम हुए 90 तो वाटर पोटेंशियल 0 से -3 कम हुआ। इजंट इट कंपैरिजन? ओके, तो वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमने प्योर वाटर की पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर की सॉल्यूशन के वाटर के पोटेंशियल एनर्जी के साथ। We compare potential energy of free water molecule with potential energy of water in solution. So ये दोनों कंडीशन में हम प्योर वाटर को सॉल्यूशन के वाटर से कंपेयर कर रहे हैं। डीपीडी के लिए हमने डिफ्यूजन प्रेशर कंपेयर किया, डीपीडी के लिए हमने डिफ्यूजन प्रेशर कंपेयर किया। वाटर पोटेंशियल के लिए हम फ्री वाटर मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी सॉल्यूशन के वाटर के पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर कर रहे हैं। तो नाउ सी, फॉर डीपीडी वी कंपेयर डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर विथ डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, sorry, and for water potential we compare potential energy of pure water with potential energy of water in solution. So ultimately what we did, we compared pure water and water in solution. प्योर वाटर को हमने सॉल्यूशन के अंदर जो पानी है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल है, उससे कंपेयर किया। डीपीडी के लिए डिफ्यूजन प्रेशर का कंपैरिजन हुआ और वाटर पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कंपैरिजन हुआ। आर यू गेटिंग दैट? सो इजंट इट द सेम थिंग? फ्री वाटर मॉलिक्यूल की ही पोटेंशियल एनर्जी अल्टीमेटली डिफ्यूजन प्रेशर में कन्वर्ट होती है। मोर द फ्री वाटर मॉलिक्यूल, मोर द डिफ्यूजन प्रेशर, राइट? सो यहाँ पे हम वही फ्री वाटर मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे वही फ्री वाटर मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन प्रेशर की बात कर रहे हैं हम। सो डीपीडी इज वाटर पोटेंशियल, बट वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम, दैट इज 0। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल ये 0 से शुरू होता है, मैक्सिमम 0 है। डिफ्यूजन प्रेशर इज पॉजिटिव, डीपीडी इज पॉजिटिव। ओके, तो दोनों न्यूमेरिकली सेम है, दोनों न्यूमेरिकली सेम है। ओनली थिंग इज दैट डिफ्यूजन प्रेशर इज अ पॉजिटिव, बिकॉज ऑल डिफ्यूजन प्रेशर का कंपैरिजन पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का ही 0 है, तो ऑब्वियसली सब सॉल्यूशन का माइनस में आएगा। ओके, ये बाय कन्वेंशन हम करते हैं। जैसे मैंने बोला कि अभी हमारा मार्किंग सिस्टम 100 मैक्सिमम है, कुछ दिनों के बाद 0 मैक्सिमम आ सकता है। ओके, सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज डीपीडी इज वाटर पोटेंशियल इन विच वी कंपेयर प्योर वाटर विथ वाटर इन सॉल्यूशन। फॉर डीपीडी प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर कंपेयर किया गया और फॉर वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर की पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर की गई। गॉट द थिंग? समझ रहे हो? राइट? सो दिस इज व्हाट इज वाटर पोटेंशियल, दैट इज DPD. Water potential is maximum 0. All the solutions have water potential in negative sign. Diffusion pressure of pure water is maximum and all solutions have less diffusion pressure, but
DPD is always a positive integer. वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम 0 होगा प्योर वाटर का, सब सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा. जितना सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतने फ्री वाटर मॉलिक्यूल का नंबर कम होगा, तो उसका वाटर पोटेंशियल मोर 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 नेगेटिव होगा. सॉल्यूशन ए का वाटर पोटेंशियल हमने -3 रखा था, दैट इज 100 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 10 सॉल्ट. वही सॉल्यूशन बी 100 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 20 सॉल्ट का वाटर पोटेंशियल और नेगेटिव, मोर नेगेटिव, दैट इज -6 कंसिडर किया था. ओके, सो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. आई नो यू वुड हैव अंडरस्टैंड पार्टली, तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना, और रिवीजन करके समझ में आएगा. और ये चैप्टर की एक पेक्युलरिटी है, you won't be very happy and satisfied that yes I understood. That feeling will be rare. You understood whatever, start solving MCQ. धीरे धीरे आपको MCQ आने लगेंगे and you feel yes समझ गया. Okay, so ये थोड़ा डिफिकल्ट है बस, लेकिन इतना ही पार्ट डिफिकल्ट है, डरो नहीं. I am with you, will revise again and again. Okay, write down everything. यहाँ पे क्लास वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है. NCERT की भाषा बड़ी गोल गोल है. क्लास वर्क आपको क्लियर आइडिया देगी MCQ सॉल्विंग के लिए. राइट डाउन